everyone. So today we were going to start the new chapter, Earth in our solar system. Let's begin the chapter. Chapter 1, the Earth in the solar system. Let us learn about the stars, Earth, a unique planet, comets, galaxies, solar system, moon, sun, asteroids, planets, and meteoroids. On a cloudless night, we see many shining objects in the sky, which we call stars. Not all of them are stars. There are over 3,000 other objects which together with the stars can be called as heavenly bodies. जब क्लाउडलेस नाइट होती है, बादल नहीं होते हैं, तो बहुत सारे शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स आपको स्काई में दिखाई देंगे. हम उनको स्टार्स बोल देते हैं, बट सारे स्टार्स नहीं होते. स्टार्स के अलावा भी देयर आर कम से कम 3,000 अदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं स्काई में that can be known as heavenly bodies. In Latin, word heavenly also means celestial, हम उसे कह सकते हैं. So we all also call them celestial bodies. The big home of all celestial bodies को हम कहते हैं universe. जितनी भी celestial bodies है together एक बहुत बड़ी जगह जो वो लेती हैं, that home जो है उनका, that is known as universe. Study of celestial bodies और उनकी movements के बारे में जो पढ़ाई करते हैं, जानते हैं, उनको research करते हैं, that is astronomy. Think and answer. How is astronomy different from astrology? Astronomy कैसे अलग है astrology? Astronomy होता है celestial bodies का study of celestial bodies and their movement. Astrology use करती है apparent position celestial objects का as the psychology की based prediction of future events. Stars, tiny twinkling objects that appear in the night sky. क्या कहते हैं हम उनको? Stars. तो हमें यहाँ से अगर हम उन्हें देखते हैं तो they appear very small, but these are very big in size, but they look like tiny dots in the sky because they are so far away. क्योंकि वो हमसे इतनी दूर है इसलिए हमें एक छोटे से डॉट की तरह नजर आते हैं. Each of the star जो है अर्थ से भी ज्यादा बड़ा है जिस अर्थ पर हम रहते हैं. Sun is also a star, but वो बहुत बड़ा दिखाई देता है क्योंकि वो अर्थ के पास है. It is nearness to the earth. Stars जो बने हुए हैं, सब stars बने हुए हैं gases. They are made up of the burning gases. They radiate heat and light emit करते हैं. That is, उनकी अपनी own light होती है, अपनी heat होती है और सारे stars सिवाय pole star के वो move करते हुए नजर आएंगे east to west. Do you know our own star sun has reached the third stage of star's life and it will continue to use up its gases को another 5 billion years तक वो use करें. Galaxy, system of billions of stars, उनके planets के साथ satellites etc. in the outer space, उसको हम galaxy कहते हैं. There are clouds of gases के clouds होते हैं, dust के, जो they are found between groups of stars के बीच में ही उनको पाया जाता है, देखा जाता है, that are known as nebula. It is where new stars are born. ये वही होता है जहाँ पे नए stars born होते हैं. सोलर सिस्टम एक मिल्की वे का पार्ट, गैलेक्सी का ही पार्ट है, जिसको हम होम गैलेक्सी कहते हैं. गैलेक्सी क्लोजेस्ट टू आवर ओन, जो हमारे क्लोजेस्ट है वो है ग्रेट स्पाइरल गैलेक्सी ऑफ एंड्रोमेडा गैलेक्सी. ये कम से कम भी 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है. दैट इज अ डिस्टेंस ऑफ 20.8 थाउजेंड क्वाड्रिलियन किलोमीटर. Celestial bodies, stars, sun, galaxy, Milky Way, planet Earth, satellite moon, asteroid swarm of rock pieces, comets, Halley's comet, meteors, meteoroids and meteoroids, shooting stars. Solar system. The word solar हमने derive किया from the Latin word solaris. Solaris का meaning होता है pertaining to the sun. Family of the sun को हम solar system कहते हैं. सन और उसके 8 प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स, उसके मून्स, मेटेरॉइड्स एंड कॉमेट्स, ये सब मिलकर सोलर सिस्टम बनाते हैं. ऑल द 8 प्लैनेट्स और अदर बॉडीज जो उसके आगे सन के चारों तरफ मूव करती है ऑर्बिट में और अपनी फिक्स्ड एलिप्टिकल पाथ में, दैट इज जो ऑर्बिट कहा जाता है, पाथ में वो मूव करते हैं, दैट इज योर ऑर्बिट. सोलर सिस्टम एक पार्ट होता है मिल्की वे गैलेक्सी का. सन कंप्लीट करता है एक ऑर्बिट को 230 मिलियन ईयर्स में, जिसको हम कॉस्मिक ईयर बोलते हैं. इट इज अबाउट 27,000 लाइट ईयर्स अवे है फ्रॉम द सेंटर ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी. सोलर सिस्टम कम से कम भी 470 करोड़ ईयर्स ओल्ड है. इन्फो, एस्ट्रोनॉमर्स यूज करते हैं एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट जिसको हम स्पेक्ट्रोस्कोप कहते हैं टू फाइंड आउट
वेदर एनी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट इन द स्पेस मूव कर रहा है अर्थ से दूर या उसके अर्थ के पास आ रहा है, वो हम देखते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से साइंटिस्ट देखते हैं। सन, सन इज द स्टार, सबसे क्लोजेस्ट स्टार है। ये एक बहुत बड़ी बॉल होती है बर्निंग गैसेस की, उसका डायामीटर है अबाउट 13 लाख किलोमीटर और नियरली 100 टाइम्स than that of the earth. By volume it is about 10 lakh times larger than the earth. So it is estimated कि टेम्परेचर जो है सन के सरफेस का इज अबाउट 6000 डिग्री सेल्सियस। आप इमेजिन कर सकते हो हाउ हॉट इट वुड बी अगर आप कंसिडर करो दैट द ओवन इन विच अ केक इज बेक्ड, जिस माइक्रोवेव ओवन में केक को बेक किया जाता है, दैट इज अबाउट 300 डिग्री सेल्सियस एंड वाटर बॉइल करता है एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो इट डज, बहुत सारी हीट लाइट निकलती है हर डायरेक्शन में। तो इट हैज ग्रेविटेशनल पुल जो प्लैनेट्स को मूव करते रहते हैं, जिसकी वजह से अपनी उस ऑर्बिट में जो वो मूव करते हैं प्लैनेट, दैट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल। इट इज अबाउट 15 मिलियन किलोमीटर जो है वो अर्थ से उतना डिस्टेंस है। इन्फो, सन इन द सेंटर्स ऑफ द सोलर सिस्टम के उसको सन इन फोकस कहा जाता है बिकॉज ना ही वो एग्जैक्टली सेंटर में है प्लैनेट ऑफ द ऑर्बिट में, एंड ड्यूरिंग एवरी ऑर्बिट में वो क्लोजर आ जाता है या फिर दूर चला जाता है। प्लैनेट्स, प्लैनेट्स आर सेलेस्टियल बॉडीज जो सन के चारों तरफ घूमती है। इन द ऑर्डर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन, वो अब सन से कितनी कितनी दूरी पे है उस ऑर्डर में हम स्टार्ट करेंगे। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। जितने भी प्लैनेट्स हैं सब स्फेरिकल इन शेप है लेकिन सबके साइज अलग है। मरकरी सबसे छोटा प्लैनेट है और जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है। मेन फीचर्स ऑफ अ प्लैनेट, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन कुछ फॉलोइंग कंडीशन सेटअप करता है एक बॉडी के लिए सोलर सिस्टम टू क्वालिफाई एज अ प्लैनेट। इट मस्ट बी सेलेस्टियल बॉडी जो ऑर्बिट कर रही है अराउंड द सन। इट मस्ट हैव इनफ वेट होना चाहिए फॉर सेल्फ ग्रेविटी। इट मस्ट हैव अ नियरली राउंड शेप होना चाहिए। इट मस्ट हैव क्लियर्ड द नेबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट। एंड द प्लैनेट्स जो है दे आर जनरली डिवाइड होते हैं दो कैटेगरी, लार्ज लो डेंसिटी गैस जाइंट्स हो गए जिनकी डेंसिटी कम होती है, गैस वाले होते हैं, एंड छोटे रॉकी टेरेस्ट्रियल। 4 टेरेस्ट्रियल होते हैं जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स जो लैंड होता है वहां पर टेरेस्ट्रियल, और 4 होते हैं आपके गैस जाइंट्स जो मेड अप ऑफ गैसेस, दैट इज जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। हर एक प्लैनेट स्पिन करता है अपनी एक्सिस पर भी घूमता है और ये मूवमेंट को रोटेशन कहते हैं। और एक रोटेशन जो है वन प्लैनेट एक दिन में करता है, वन कंप्लीट राउंड अराउंड द सन, और जो सन के चारों तरफ वो घूमते हैं दैट इज रेवोल्यूशन या फिर प्लैनेट ईयर उसे कहते हैं। इन्फो, एक इजी वे टू मेमोराइज द नेम्स इन द ऑर्डर ऑफ प्लैनेट्स को हम याद कैसे कर सकते हैं। माय वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शाउट अस नाइट, you are unable to learn the names of the planets in sequence, you can learn this line. My very educated mother just served us none. So, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Mercury. Mercury ऑर्बिट करता है सन के अराउंड 1 in 88 अर्थ डे। मरकरी की कैलरी बेसिन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट नोन क्रेटर्स कहा जाता है सोलर सिस्टम। वीनस सबसे ब्राइटेस्ट और हॉटेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। इसका एटमॉस्फेयर मेनली मेड अप ऑफ है कार्बन डाइऑक्साइड। Unlike most other planets in the solar system, Venus spin करता है not from west to east but also from east to west. Earth. Earth is the only habitable planet जो home है to humans and a huge variety of living organisms. Fun zone. Earth को we call as Goldilocks planet. Do you remember the story of Goldilocks and the three bears? Find it how yours. Mars. It is called the red planet because उसका surface red होता है। ये होम होता है ओलंपस मॉन्स, लार्जेस्ट वॉल्केनिक माउंटेन जो है जो फाउंड हुआ था सोलर सिस्टम में वो इसी प्लैनेट पर हुआ था, मार्स। द माउंटेन स्टैंड्स अबाउट, और ये जो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ उससे जो माउंटेन बन गया टावर से, दैट इज 27 किलोमीटर हाई है विद द क्रेटर 81 किलोमीटर वाइड। जुपिटर, जुपिटर लार्जेस्ट प्लैनेट है बट वो स्पिन करता है बहुत तेज, अपनी ही एक्सिस से बहुत तेज तेज घूमता है। एक दिन जुपिटर पर लास्ट करता है खाली 9 hours and 55 minutes। सैटर्न,
ये सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट होता है और वो गैसेस से बना है, स्पेशली हाइड्रोजन और हीलियम से। इसके रिंग्स जो बने होते हैं वो आइस से बने हुए हैं, डस्ट एंड रॉक्स। यूरेनस ये फर्स्ट प्लैनेट है जो डिस्कवर किया गया था बाय टेलीस्कोप। यूरेनस स्पिन करता है लाइंग ऑन इट साइड्स लाइक अ बैरल की तरह। सिंस यूरेनस को 84 अर्थ ईयर्स लगते हैं सन के चारों तरफ घूमने में। ईच ऑफ इट्स पोल्स जो है उसमें डे लाइट भी होती है 42 ईयर्स तक, और वो डार्कनेस में रहता है नेक्स्ट 42 ईयर्स। तो 42 ईयर्स तो वहां पर दिन रहता है, 42 ईयर्स वहां पर रात। तो लाइक वीनस वो भी स्पिन करता है ईस्ट से वेस्ट की तरफ। नेपट्यून नेपट्यून नियरली 4 टाइम्स साइज है अर्थ का। 1 नेपट्यून ईयर होता है 165 अर्थ ईयर। तो सबसे वायलेंट वेदर होता है, फ्रीजिंग विंड ब्लो करती है वहां पर, जो कम से कम भी 10 गुना ज्यादा तेज होती है हरिकेन्स ऑन दी अर्थ, जिससे इस प्लैनेट को विंडीएस्ट प्लैनेट कहा जाता है। फाइंड आउट व्हाई इज नेपट्यून कोल्डेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। प्लूटो प्लूटो इज नॉट अ प्लैनेट नाउ। वो ऑर्बिट करता है सन को, राउंड होता है। प्लूटो को हम कंसिडर नहीं करते हैं प्लैनेट बिकॉज इट हैज क्लियर्ड द नेबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट। ये रीजन था कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन चूज टू डिमोट इट, इसीलिए पहले इट वाज अ पार्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, दैट आफ्टर बिकॉज ऑफ दिस रीजन दे हैव रिमूव्ड इट, दे डिमोट इट फ्रॉम अ प्लैनेट, वो ड्वार्फ प्लैनेट का नाम दे दिया इन 2000। Dwarf planets in the solar system are Eris, Dysomnia, Pluto, Makemake, Haumea, and big asteroid Ceres. They are tiny planets within our solar system. ये हमारे सोलर सिस्टम में ही होते हैं, छोटे प्लैनेट्स होते हैं। इनको क्लासिफाई किया जाता है कुछ फीचर्स के बेस पर। They should be orbited around the sun. ऑर्बिट पे होने चाहिए सन के चारों तरफ। They must weigh enough for self gravity, के लिए उनका वेट उतना होना चाहिए। They must have an almost round shape होनी चाहिए। They should not be satellites, नहीं होने चाहिए। They must have not cleared the neighborhood around their orbits. Now Earth a unique planet. Earth एक थर्ड planet है सन से and fifth largest planet है हमारे solar system. It is also largest है solar system का fourth terrestrial planet. It is sometimes referred to as blue planet भी कहते हैं, या फिर उसके Latin name Terra. ये spherical in shape है, slightly bulging है equator से and एक bit flattened है, pole से flat. It lies at distance of about 150 million kilometers from the sun. ये spin करता है अपने ही tilted axis पर at the speed of 1600 kilometers an hour. तो 365 days लगते हैं and 6 hours for the Earth to complete एक revolution complete करने around the sun, and 24 hours लगता है Earth को rotation complete करने के लिए अपनी axis. Together ये movements affect करती हैं temperatures को and weather को planet पर, and thus वह experience करते हैं बहुत सारे seasons. इन्फो अर्थ जो है वो स्फीरॉइड की शेप में है विद फ्लैटन पोल्स। उसका सरफेस को हम टेकन एज मीन लेवल सरफेस, दैट इज जितने भी माउंटेन एंड ओशन बेसिन होते हैं उनको लेवल अप किया जाता है टू द मीन सी लेवल सरफेस। टर्म जियोइड वाज यूज्ड टू डिस्क्राइब दिस अर्थ लाइक शेप। को अर्थ की शेप को डिस्क्राइब करने के लिए टर्म यूज किया गया जियोइड। इट वाज कॉइन्ड बाय J.F. लिस्टिंग, अ मैथमेटिशियन, इन 1873। द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है अर्थ का और उसका पोजीशन का रिलेटिव टू द सन, उसको उसने हैबिटेबल बनाया। ये इकलौता प्लैनेट है सोलर सिस्टम में जहां पर ह्यूमन बींग्स और लार्ज वैरायटी ऑफ अदर स्पीशीज एग्जिस्ट करते हैं। उसका डिस्टेंस सन से परफेक्ट है फॉर मेंटेनिंग सूटेबल, मतलब इतना डिस्टेंस है कि वहां पर सूटेबल टेम्परेचर भी है, कंडीशंस भी लाइफ के लिए एग्जिस्ट करने के लिए है। अगर हमारा प्लैनेट क्लोजर हो जाता और सन का तो ओशन सूख जाते, और अगर वो दूर हो जाता तो वाटर बॉडीज जम जाती। तो बिल्कुल मिड में है, ना दूर ना पास। कंपैरिजन बिटवीन स्टार्स एंड प्लैनेट। स्टार्स दे आर ह्यूज मासेस ऑफ बर्निंग गैस, और प्लैनेट्स क्या होते हैं, मेड अप ऑफ कोल्ड गैसेस एंड सम आर रॉकी। स्टार्स दे शाइन बाय देयर ओन लाइट एंड हैव देयर ओन हीट। स्टार्स की अपनी ही लाइट और हीट होती है, और प्लैनेट्स रिफ्लेक्ट करते हैं हीट एंड लाइट ऑफ देयर स्टार सन की, और वो उसी की लाइट से शाइन करते हैं। There are billions of stars, और only 8 planets हैं हमारे solar system that have been recognized so far. Earth ये एक रॉकी और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, और अदर प्लैनेट्स ओनली अदर इनर प्लैनेट्स जो है वो रॉकी पावर कर, और आपके जो आउटर प्लैनेट्स है वो रॉकी है, बाकी की गैसियस है। आउटर प्लैनेट्स आर गैसियस एंड अदर इनर प्लैनेट्स आर रॉकी। अर्थ कॉम्प्राइज है लैंड, एयर, वाटर एंड सपोर्ट्स लाइफ। वाटर डिस्कवर्ड हुआ है ऑन सम ऑफ द अदर प्लैनेट्स, कोई एविडेंस नहीं मिला दैट द लाइफ सपोर्ट है या नहीं। प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेरिक ब्लैंकेट है, दैट इज ओजोन लेयर। रिंग्स नहीं है अर्थ में।
अदर प्लैनेट्स में कोई ऐसी गैसियस शील्ड नहीं है, जो ओजोन लेयर नहीं है जो प्रोटेक्ट कर सके। रिंग्स भी प्रेजेंट है कुछ प्लैनेट्स में। क्लाइमेट यहाँ पर सूटेबल है, और क्लाइमेट यहाँ हार्श है, या तो बहुत ठंडा या बहुत गर्म। मून, मून आज की इकलौती एक ही सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट एक सेलेस्टियल बॉडी होता है जो प्लैनेट के चारों तरफ घूमती रहती है। कुछ प्लैनेट्स के मल्टीपल भी सैटेलाइट्स होते हैं, नेचुरल सैटेलाइट भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन अर्थ के पास एक ही है। और कुछ ऐसे प्लैनेट है जिसकी एक भी सैटेलाइट नहीं होती। फैक्ट, लार्जेस्ट ऑफ जुपिटर्स मेनी मून्स को हम इज नेम्ड एज गैनीमेड, एंड दैट ऑफ सैटर्न इज नेम्ड टाइटन। एज इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ वो इलिप्टिकल है, तो मून इज एट एवरेज डिस्टेंस पर है 384,403 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। मून कंप्लीट करता है अपनी एक ऑर्बिट को अर्थ के चारों तरफ इन 27.3 डेज में। उसे लगते हैं 27.5 डेज की वो रोटेट करता है अपनी ही एक्सिस पर, और यही रीजन है की वजह से हम ऑलवेज सी द सेम मून की हम सेम साइड देख पाते हैं। मून का सरफेस एरिया 1/10 ऑफ द अर्थ सरफेस एरिया से कम होता है, और उसकी वॉल्यूम है अबाउट 2% ऑफ वॉल्यूम ऑफ दी। उसको हम ऑर्बिट में रखते हैं बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। मून सरफेस रॉकी है, कवर्ड विद डस्ट, इट हैज लार्ज होल्स ऑन इट्स सरफेस दैट इज कॉल्ड क्रेटर्स। कोई एयर नहीं है मून पर, इट हैज नो लाइफ और एनी काइंड, ना ही उस पर लाइफ एग्जिस्ट। लार्जेस्ट क्रेटर मून पर है आपका साउथ पोल एक्टिन बेस, उसको हम वन ऑफ द लार्जेस्ट नोन क्रेटर्स भी कहते हैं सोलर सिस्टम। फेजेस ऑफ द मून, मून कंप्लीट करता है अपनी रोटेशन को अपनी एक्सिस पर इन 27 डेज। उसको नियरली सेम टाइम लगता है टू कंप्लीट रेवोल्यूशन अराउंड द सन, देयरफॉर सेम साइड फेस करता है अर्थ। हम बहुत सारे चेंजेस देखते हैं फेजेस ऑफ द मून एट डिफरेंट पोर्शन एट लिट डिफरेंट टाइम, कि अलग अलग पार्ट अलग अलग टाइम पर जो है वो उसे रोशनी मिलती है, तो एल्स वो अदर टाइम वो डार्क रहता है। तो ये लिट और अनलिट पोर्शन जो मून का होता है, इसी को मून के फेज कहते हैं। जहां पर रोशनी पड़ती है उस अकॉर्डिंग वो दिखाई देता है वो वाला पोर्शन में, और अदरवाइज वो डार्क लगता है, या लूनार फेजेस कहते हैं, जो वो घटना शुरू हो जाता है। ये जो फेजेस होते हैं इनको फुल मून, न्यू मून, जिबॉस, क्रिसेंट, फर्स्ट, लास्ट क्वार्टर्स कहा जाता है। वो डिपेंड करता है कि कितनी सनलाइट लाइट करती है मून को। तभी तो आपका 15 डेज का जो ये साइकिल चलता है, कि 15 डेज बाद बिल्कुल अमावस जिसे हम कहते हैं, जब मून नहीं, नो मून डे होता है, एंड पूर्णिमा इज इन अ फुल मून डे। फेज ऑफ द मून, जब मून फुल लिट हो जाता है उसको फुल मून या पूर्णिमा कहते हैं, और 15 डेज के बाद जब वो कंप्लीटली डार्क हो जाता है, न्यू मून या फिर अमावस्या उसे। टर्म लाइक वैक्सिंग और वैनिंग हम यूज करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए ग्रोइंग एंड थिनिंग फेजेस ऑफ द मून। अदर मेंबर्स क्या है सोलर सिस्टम के? एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स जो होते हैं वो इरेगुलर शेप रॉक्स होती हैं, एंड डेब्रिस जो ऑर्बिट्स ऑफ द मार्स और जुपिटर के बीच में, मलबा जिसे कहते हैं डेब्रिस। साइंटिस्ट मानते हैं कि वो फॉर्म हुए थे करीब करीब 4600 मिलियन एगो, ईयर्स एगो पहले, जब एक अर्ली प्लैनेट ब्रोक अप इन द सोलर सिस्टम। बहुत से उनमें से आप बेल्ट कर सकते हो बिटवीन द मार्स एंड जुपिटर, और ये रीजन हमारे सोलर सिस्टम में हम कहते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट। सेरेस जो था ड्वार्फ प्लैनेट है, ये लार्जेस्ट एस्टेरॉइड है हमारी एस्टेरॉइड बेल्ट का। मीटियोर्स एंड मीटियोराइड्स, मीटियोर्स टाइनी पीसेस हैं मेटल के या रॉक के, जिसमें एग्जिस्टेंस में आए जब एस्टेरॉइड्स ब्रेकअप होते हैं ना, उससे भी टूट के उससे और छोटे पीस। तो मोस्ट ऑफ द मीटियोर्स बर्न हो जाते हैं, अर्थ तक पहुंचने से पहले ही वो जल जाते हैं। शूटिंग स्टार्स जो हम दिखाई देते हैं ना, स्टार्स की हमें स्टार्स नीचे आ रहे हैं, जिनको हम शूटिंग स्टार्स कहते हैं, लाइक पीपल यूज टू विश स्टार्स, शूटिंग स्टार को देख के। बट मीटियोर्स स्ट्रीकिंग अक्रॉस द स्काई, जब ये ऑब्जेक्ट्स अर्थ सरफेस पर आते हैं तो उनको मेटेरॉइड्स कहा जाता है। लार्ज मेटेरॉइड्स ह्यूज क्रेटर्स भी फॉर्म करते हैं जब वो अर्थ पर फॉल करते हैं, और अदर प्लैनेट। फाइंड आउट व्हाट इज द टेल ऑफ अ कॉमेट कंपोज ऑफ, व्हाट मेक्स इट शाइन। कॉमेट होता है, उसकी ना एक टेल होती है, वो किससे बनी होती है, वो शाइन क्यों करती है? हैव यू हर्ड अबाउट द Halley's comet? Do you know the best known comet is Halley comet? After Sir Edmund Halley, who discovered it in the 17th century, was last seen in 1986 and is expected to return in 2061. Meteoroid, meteor, and meteorite. Meteorite. It moves around the sun outside the Earth's atmosphere, जो interplanetary space में है. Meteor is a meteoroid जो pass करता है through Earth's atmosphere. Meteoroid एक large piece of rock होता है जो pass करता है through Earth's atmosphere and falls on Earth.
Meteoroid is a flying rocky object in space that tends to move towards the Earth's atmosphere. Meteor is about 25 million meteoroids become meteors and hit the atmosphere daily. Meteoroid एक that meteor that falls जो अर्थ के सरफेस पर फॉल करता है और क्रिएट करता है एक हॉलो या फिर क्रेटर उसका इम्पैक्ट जब पड़ता है तो वो एक गड्ढा सा बना देता है मीटेरॉइड बिग इनफ नहीं होता जिसको हम एस्टेरॉइड बोल सके इतना बड़ा भी नहीं होता मीटियोर जो होता है उसको हम शूटिंग स्टार भी कहते हैं वो ग्लो करता है चमकता है और बर्न करता है फ्रिक्शन की वजह से जब वो एटमॉस्फेयर के कॉन्टैक्ट में आता है वो जलता हुआ नजर आता है एंड मीटेरॉइड ये रॉक्स होती हैं आउटर स्पेस से मोस्टली में आयरन कंटेन होती है कॉमेट्स You might have heard about or seen a comet with a shining tail flashing through the night sky. Comets small icy bodies होते हैं जो revolve करते हैं around the sun. वो glow करते हैं with the light of the sun as they come close. Summary of the chapter. Big home of all celestial bodies in the sky वो हम universe कहते हैं. Tiny twinkling objects that appear in the night sky that is called stars. The sun, 8 planets, asteroids, moons, meteoroids and comets together solar system बनाते हैं. अर्थ का इकलौता नेचुरल सैटेलाइट जो है वो मून है A white glowing path across the sky on a clear bright night वो गैलेक्सी है वो मिल्की वे गैलेक्सी मीटेरोइड स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक होता है जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं कॉमेट्स ब्यूटीफुल बॉडीज होते हैं जो डस्ट पार्टिकल्स से बने होते हैं कॉजन Let's move ahead to the exercise. Fill the correct option OMR sheet. The system where 8 planets and other celestial bodies move around the sun is called the solar system. The path of the planet around the sun is called orbit. Which is the third nearest planet to the sun, that is Earth. The planets and their moons revolve around the sun in fixed paths. These planets are elliptical. Celestial bodies that revolve around the sun between the orbits of Mars and Jupiter, they are called asteroids. Group of stars that forms a certain imaginary shape is called constellation. Now let's do fill in the blank. The ash is called the red planet, that is Mars. Meteors that fall on the earth are called meteoroids. Dash appear as beautiful shining bodies with long tails in the sky, that is comets. Study of celestial bodies and their movement is called astronomy. Halley's comet appears every 76 years. So I hope you all have understood this chapter. You all can go through it again, read the exercises. We'll meet in the next chapter. Till then, bye bye. Take care.